Okay, let's start with the first one. This is a very good question. The correct sequence of reagents for the following conversion will be. Now, the approach for this question is just look at the conversion with respect to the functional group. What is the functional group you see over here? Ketone Yes, and aldehyde. ketone and aldehyde. So now this part of the compound, which is ketone, is converted to what? Is converted to what? Alcohol. No, don't say it's an alcohol. It's wrong. Primary alcohol. Is it a primary alcohol, Sharon? Just No, take a no, C no. over here. One, two, Sorry. three, four. Huh? Yeah. Yeah. Tertiary. It's tertiary Tertiary. alcohol. So आपका पहला observation is ketone is converted into tertiary alcohol. Next, you look at this functional group. What's that? Aldehyde. Aldehyde. And what is this? Yeah, it's One Tertiary carbon, tertiary two alcohol. carbon, only. three carbon. Why you are Yeah. taking so much time to identify? C matlab tertiary, CH matlab secondary, CH2 matlab primary, right? Yes, sir. Now, if you observe, ketone is converted into tertiary alcohol via what reagent? Grignard's. Grignard's reagent. Hmm. And aldehyde is converted into tertiary alcohol through what? If you think of the Grignard, aldehyde is converted into secondary alcohol through Grignard Secondary. reagent and not into a tertiary Yeah. alcohol. So here aldehyde is not directly converted into tertiary via Grignard. So there has to be some sequence of reagents which will convert it into a tertiary alcohol. आ रहा है समझ में? Yes, sir. So now let's look at the reagent to understand this. If I start with the Grignard reagent, will I get the desired product? If I start with No, Grignard, then No, ketone no. will be converted No, to sir. tertiary, aldehyde will be Yeah. converted to secondary. 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 Matlab, this is not the desired sequence of reagents. Next, what's this? Tollens reagent. Very good. And tolons affect which functional group? Aldehyde. And aldehyde gets converted into what? Aldehyde gets oxidized with tolons reagent to form what? Acid. Acid. Now, does the acid react further with the Grignard? Yeah, it does. And what is the reaction of acid with Grignard? Think of Grignard reagent always prepared in the presence of dry ether. So yeah. So Grignard reagent has a source of carbon ion, always remember, which is Yes, sir. thirsty for acidic H. And the moment it sees the acidic H, बावला हो जाता है वो, and the Grignard का alkyl takes away the H to form the alkane. And the byproduct will be Mg, Br, and OOCr. So the funda was Grignard, if it comes in contact with any H containing compound like acid, water, alcohol, amine, it will be converted into an alkane. Matlab, is this conversion obtained through the second sequence? Yes or no? नहीं मिलेगा ना? Yes, sir. You अल्डिहाइड won't से get it. एसिड बनेगा, एसिड से ग्रिग्नार्ड के थ्रू आपको अल्केन मिल जाएगा, तो अल्केन के थ्रू ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिल सकता. ठीक Yes, है, sir. अब थर्ड पे जाते हैं. अगेन स्टार्टिंग विद टोलेंस, व्हाट विल बी फॉर्म्ड? Acid. Acid. Now acid with methanol in acidic medium, acid and alcohol forms what? Ester. Ester. Now does ester react further with the Grignard? Does ester react with the Grignard? Yes. Yes, ester के दो cases है. If it was formate ester, then first step में you get an aldehyde,
which further gets converted into secondary alcohol. And Yes, ईस्टर sir. अगर जनरल हो तो आपको कीटोन Ketone मिलता है, उसके and बाद tertiary. टर्शियरी अल्कोहल मिलता है. Yes, sir. मतलब through the ester we can get a tertiary alcohol. Yes, sir. So this aldehyde actually, what will happen over here is it will be first converted into acid. Acid. I'll just show the general sequence. It will be first oxidized with Tollens reagent to get converted into acid. Acid will be converted into an ester via an Ester. alcohol in acidic medium, and Yes. the ester with excess of the Grignard R double dash MgX gives a tertiary Ketone. alcohol. Excess obviously. Clear? मतलब अगर आप ऑप्शंस को रूल आउट करते तो अगर स्टार्टिंग में ही ग्रिग्नार्ड लेते जो कि ऑप्शन ए और डी में है, तो वो दोनों ऑप्शन रूल्ड आउट है कि नहीं बोलो? यस सर। तो ए और डी आपने रूल आउट कर दिया. बी में सोचा होता तो एसिड बनता, एसिड से अल्केन बन जाता, तो आगे कुछ नहीं होता. और सी में सोचते तो ये वाला सीक्वेंस वैलिड हो जाता. एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन सी. See, if you go by ruling out also, you should have got the answer. Tricky question था, but अच्छा question था. Concept related था. Yes, sir. Got it? You don't Yeah. have to write the entire reaction. That's not required. Organic में एक general approach आपका होना चाहिए कि this is the functional group ketone and it's converted not into alcohol. That's wrong. If you say alcohol, I'll say it's wrong. Say ketone is converted into. टर्शरी। बोलने में फर्क आ जाता है, इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत स्पेसिफिकली बोलो टाइप ऑफ द अल्कोहल. सो यू विल ऑलवेज से कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी अल्कोहल, योर अल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी अल्कोहल. अब यहाँ पे कैच था कि अल्डिहाइड डायरेक्टली ग्रिग्नार्ड से तो टर्शियरी देता ही नहीं है, तो ऑप्शन ए और डी सीधा रूल्ड आउट. ठीक है, बी और सी में से थोड़ा सोचते तो आपको आंसर मिल जाता. एंड वी हैव डन ऑल द रिएक्शंस, ऐसा कुछ नया नहीं था यहाँ पर. ठीक. Yes, sir. Next. This was a simple question. A compound of molecular formula C8H8O2 reacts with acetophenone to form a single cross-aldol product. Cross-aldol product. और सिंगल बोला है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखो. मैं बताता हूँ क्या होगा इसका सिग्निफिकेंस. सिंगल क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस. मतलब C8 हाँ, C8H8O2 is reacting with acetophenone, which is benzene C double bond O CH3 in the presence of a base. So we know that base catalyzed aldol condensation होता है, बराबर. और यहाँ पर एक ही क्रॉस अल्डोल मिल रहा है. अच्छा, एक ही क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट का मतलब क्या? सिंगल. क्रॉस अल्डोल में एक्चुअली यू कैन गेट अ मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स. और दो प्रोडक्ट्स कब मिलेगा? जब दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड में अल्फा एच हो. बट अगर एक कार्बोनाइल में अल्फा एच ना हो तो दैट हैज टू बिकम द सबस्ट्रेट and the other will become a reagent. जैसे हमने ABC और फा रिएक्शन देखा, ये सिंगल क्रॉस अल्डोल के ही एग्जाम्पल है, और इसको क्लेशेंस्की-मिथ रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. हियर एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड में से बेंजल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं होता, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा एच नहीं होता, इसलिए आपको एक ही क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट मिलता है. इसका मतलब है सिंगल क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट. मतलब ये वाला जो कंपाउंड होगा उसमें अल्फा एच का प्रेजेंस नहीं होगा. नहीं होगा. समझा? डिकोड किया मैंने ये स्टेटमेंट से. नॉट
having the alpha H. This is a molecular formula C8H8O2 वाला compound not having the alpha hydrogen. ठीक है, आगे the same compound, यही compound on reaction with concentrated NaOH forms benzyl alcohol as one of the products. Now if this is a carbonyl, carbonyl तो पक्का है ना, कार्बोनाइल का concentrated alkali के साथ कौन सा रिएक्शन सोचेंगे? Canizaros. कैनिजारोस, और कैनिजारोस के थ्रू हमने देखा कि one of the product is benzyl alcohol. So this reactant has to have Benzaldehyde. benzaldehyde as one of the part of the compound. कि benzaldehyde में 7 ही कार्बन गए, अब बाकी 8वां कार्बन किस फॉर्म में होगा वो आप ऑप्शन से देख सकते हो. बट अगर ऑप्शंस में देखोगे तो benzaldehyde related एक ही कंपाउंड है, First and that one. is first one. तो यहाँ पर मिथॉक्सी का कोई लेना देना ही नहीं है, उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. सी इट कांट बी द बेंजोइक एसिड ओवर हियर, ये नहीं हो सकता, तो ये रूल्ड आउट था. इट कांट बी एन एस्टर, इट कांट बी अ कीटोन, बिकॉज अगर ये एसिटोफिनोन होता तो उसमें अल्फा एच है ना. Yes, तो सिंगल क्रॉस अल्डोल में बोला है कि इसमें अल्फा एच है ही नहीं, मतलब अगर कंफ्यूजन डी में आ भी जाए तो वो कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाता है. So again, I'm not written the reaction through the funda only. The answer is option A. This is strength of organic. Thought process आना चाहिए बस. Getting it? Yes or no? yes, sir. So benzaldehyde के through benzyl alcohol as one of the product is nothing but the Canizaro's reaction over here. चलो आगे. Now ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बट इट इज गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिया है यहाँ पर. 2 aliphatic aldehydes P and Q react in the presence of aqueous K2CO3 to give a compound R, which upon treatment with HCN provides compound S. On acidification and heating, S gives the product shown below. This is your final product on acidification and heating. तो सबसे पहले whatever information is given, we'll just write it in the general form. There are 2 aliphatic aldehydes P and Q. They react in the presence of aqueous K2CO3. Can you understand what does this statement or what does this statement relate to? Aldol. Good, very good. See, they have clearly stated these are 2 aliphatic aldehydes. मतलब ये carbonyl compounds हैं, और carbonyl के साथ aqueous base, और ये weak base है. Weak base का मतलब it has to be the aldol product. So it gives a compound R. ठीक है, this R has to be a beta hydroxy aldehyde. Aldol क्या होता है? Beta hydroxy aldehyde, yes or no? Yes, sir. मतलब this R is an aldol. अब this on treatment with HCN कौन सा रिएक्शन? Addition reaction. Yeah, so what does it form? अरे aldehyde with HCN forms Cyanohydrin. form cyanohydrin. Yeah. मतलब ये जो कंपाउंड S है वो एक साइनोहाइड्रिन कंपाउंड है. कैसा है मुझे नहीं पता, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट क्या क्या मिल रहा है आपको इन्फॉर्मेशन वो डिकोड कर रहे हैं. देन उसका एसिडिफिकेशन करके हीट किया. नाउ एसिडिफिकेशन ऑफ द साइनोहाइड्रिन गिव्स साइनोहाइड्रिन का एसिडिफिकेशन, साइनाइड का एसिडिफिकेशन होगा ना. साइनोहाइड्रिन में साइनाइड का एसिडिफिकेशन मतलब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस. अमोनिया. साइनाइड का हाइड्रोलिसिस. साइनाइड के 2 Acid, इंपॉर्टेंट right? रिएक्शन, हाउ कैन यू Acid. फॉरगेट. Yeah, acid. Yeah, acid. साइनोहाइड्रिन में 2 ही सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वन इज H H, and वन इज R. R. Yeah. Yeah. मतलब हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड व्हिच गिव्स यू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड R मतलब रिडक्शन व्हिच गिव्स यू अ बीटा Beta हाइड्रोक्सी अमाइन. hydroxyamine.
साइनोहाइड्रिन का कभी भी अगर रेफरेंस आएगा, ये 2 ही रिएक्शन सोचना है। कहाँ 20 रिएक्शन है जो इतना डिफिकल्ट हो जाता है तुम्हारे लिए? So cyanohydrin gives a carboxylic acid and उसका हीटिंग किया जो आपको ये प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, जो दिया हुआ है वहां पर। अब इस प्रोडक्ट से थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालने का ट्राई करो। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर गिवन, फाइनल स्ट्रक्चर, ये स्टार वाला जो प्रोडक्ट है? Ketone alcohol हाँ, and अल्कोहल तो है डेफिनेटली, एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू बी स्पेसिफिक। चलो, और ketone. शरण, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर ओ होता है, Ester. Acid आप derivative. इसको कीटोन नहीं बोल सकते हो, इट्स एन एस्टर। इट्स एन एस्टर। तो ये जो स्टार वाला कंपाउंड है, देयर इज एन एस्टर एंड अल्कोहल व्हिच इज प्रेजेंट। अब थोड़ा पीछे जाओगे तो रिवर्स में सोचने की कोशिश करो। एस्टर इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड एंड व्हाट? Alcohol. मतलब इस Stearic कंपाउंड acid. में देयर इज एन हाँ. अल्कोहल ग्रुप आल्सो, और वो है ही। ठीक है, साइनोहाइड्रिन का एसिडिफिकेशन एक्चुअली आपको क्या देता है? Alpha hydroxy acid. एक्सीलेंट। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, जो अल्फा हाइड्रोक्सी का OH है और एसिड का COH है, उसमें आपस में ही Reaction हो गया. इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन हुआ होगा, Yeah. and that intramolecular esterification gave the ester over here. आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो अब ईस्टर अगर दिया है तो हाउ डू यू फाइंड द एसिड एंड अल्कोहल? मैं ये ईस्टर को थोड़ा बड़े तरीके में लिख लेता हूं। इट्स गिवन लाइक दिस, ये आपका एस्टर हो गया, यहाँ पे OH है, लेट्स विजुअलाइज, एंड देयर आर 2 methyl groups over here, correct? So let's, sorry, they are on the same carbons, so sorry. So if this is an ester, how do you find the acid and alcohol? Addition of OH and H, जहाँ पे Hmm. alcohol में H and acid में OH. कौन सा बॉन्ड टूटेगा, this or this? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला. लेट्स अंडरस्टैंड। अगर मेरे ऊपर पास वाला, एस्टर है, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, है ना, हमें पता है कि ईस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिड और अल्कोहल देता है। RC डबल बॉन्ड O OH and R dash OH, correct? So what happens over here, this particular bond, carbonyl and oxygen का bond breaks down, यहाँ पे OH लगता है और यहाँ पे H लगता है। तो कौन सा बॉन्ड टूटा देखो जरा? नीचे वाला. नीचे वाला. मतलब C कार्बोनाइल एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, याद रखो। अब इस केस में कार्बोनाइल एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ये है, Yeah. ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OH लगाओ, यहाँ पे H H लगाओ, लगाओ. हाँ. करेक्ट? तो इससे करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिलेगा, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ लिखने का। I'll get HOOC carboxylic acid, उसके बाद CHOH, OH. उसके बाद C पे 2 C पे मिथाइल, methyl. उसके Then बाद one more C. One more. CH2, Then can I one- say? Yeah, CH2. And then OH. OH. Hmm. मैंने खाली रिंग को ओपन करके एसिड और अल्कोहल ग्रुप, तो रिएक्शन हुआ होगा इस कार्बोक्सिल के OH के OH. साथ H. इस H का, समझा? Yes, sir. हमने ये वाला कंपाउंड फाइंड कर लिया। अब इसके पीछे जाकर साइनोहाइड्रिन देखना है। तो साइनोहाइड्रिन में हमें ये मिलता है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, हाँ. और साइनोहाइड्रिन बनता है अल्डिहाइड से। Yes, sir. मतलब यहाँ पे आपका CN था पहले, तो ये साइनोहाइड्रिन हुआ, और साइनोहाइड्रिन के पहले भी आपके पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होगा, और ये ग्रुप निकल जाएगा ना। समझा कि नहीं समझा? समझा.
सी क्या होता है, मैं वापस आपको जनरलाइज फॉर्म में बताता हूँ. आपका अल्डिहाइड अगर RCH डबल बॉन्ड O है प्लस HCN होता तो आपको प्रोडक्ट में मिलता RCHOH और CN, और उसी CN का हाइड्रोलिसिस आपको देता है RCHOH और COH. तो अगर मुझे इस कंपाउंड से अल्डिहाइड तक जाना है तो सिंपल लॉजिक क्या है, जो भी आपका CHOH COH वाला पार्ट है वो सेम रखकर R को कॉपी पेस्ट करो एंड अल्डिहाइड लगा दो. Yes, sir. यस और नो? Yeah. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. अभी एक जनरल है, कभी भी अगर नई स्ट्राइक हो ना, सी दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल, बट if you look at this particular sequence, we have already learned this sequence. Yes, sir. So can I say this part of the compound is your R? बोल दो R. Hmm. Now इस R के साथ can you see CH, OH, COH? Hmm. ये सब भूल जाओ, ठीक है. तो अब अगर मुझे इसके थ्रू अल्डिहाइड को देखना है तो कीपिंग द R to be same, that is C with CH3, CH3, CH2OH, can I just bond the aldehyde group over here? Yes, sir. Yes, sir. एक बार फिर से, I had an ester which was Ester. cyclic. Through the hydrolysis, I found the acid and alcohol in the reverse manner. Through the cyanohydrine alpha hydroxy acid, I found the cyanohydrine, मतलब CN को यहाँ प्लेस कर दिया. अब CnCHOH is the converted part of the aldehyde का HCN reaction. तो जो भी मेरा R पार्ट है वो तो मेरे अल्डिहाइड में फिक्स है ना, तो बस मैंने वो पार्ट हाईलाइट कर दिया, उसको फिक्स रखा और CHO लगा दिया, ये मेरा अल्डिहाइड हो गया, राइट. मतलब मैं कहां तक पहुंचा देखो, साइनोहाइड्रीन से पीछे पीछे जाकर मैंने ये फाइंड कर लिया, ये मेरा कंपाउंड R हो गया. नाउ लेट्स चेक, इज इट अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड? लेट्स चेक. This is your aldehyde, this is alpha, this is beta. Wow, this is your aldol. मतलब this is the product R. समझा? हाँ, समझ. ठीक है. अब अल्डोल को हम एक स्पेसिफिक तरीके से लिखते थे, ध्यान रहेगा तो. I will just Double reverse bond the, O नीचे. हाँ वो रिएक्टेंट के थ्रू ना, तो मैं इस प्रोडक्ट Yeah. को देखो कैसे लिख रहा हूँ, CH2OH, C with CH3, CH3 and CHO. ठीक है. अब हम करते क्या थे, अल्फा हाइड्रोजन गोज टू कार्बोनाइल ऑक्सीजन और ये OH बन जाता था, और जो Yes, अल्फा sir. कार्बन था वो इसको बॉन्ड करता था. Hmm. तो अगर मैं रिवर्स में जाऊं तो H को इधर रखूं और O को इसके साथ बॉन्ड करूं तो मेरा ब्रेकडाउन करके दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होगा फॉर्मल्डिहाइड एंड CH, CH3, CH3 CH3 with CHO. CHO. Now look at this. Didn't we write the aldol का reactants in this manner? Yeah. Yes or no? Yes, sir. Yes. क्या Yes, बोला था, sir. अल्फा H goes to carbonyl oxygen, अल्फा कार्बन Carbon goes goes to to carbonyl carbonyl carbon. कार्बन. Carbon. ठीक है, मतलब ये मेरा कंपाउंड P है, ये मेरा Q है, वाइस वर्सा हो सकता है, P and Q आर टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, मुझे पता नहीं कौन सा क्या है, बट ये दो है वो कंफर्म है. तो P Q R मिल गया मुझे. लेट्स सी द क्वेश्चंस. समझा इतना Yes, sir. चरण? Yes, sir. Okay, so the compounds P and Q are, now formaldehyde related दो ही ऑप्शंस है, B और D, और उस formaldehyde के साथ आपका isobutyraldehyde होना चाहिए था, this one, है ना. लेट्स चेक अगेन. ये देखो isobutyraldehyde है कि नहीं? Yes, sir. So the answer is B. यही है. ठीक है, P and Q मिल गया. अब नेक्स्ट द कंपाउंड R. R क्या था? R इज एन अल्डोल. तो अल्डिहाइड विथ
2 methyls and a primary alcohol. ऐसा देखो, aldehyde with 2 methyls and a primary alcohol. Here aldehyde with 2 methyls and a primary alcohol, right? Yes, और sir. आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड भी है, वैसे भी आप देख सकते थे ऑप्शंस में, वैसे सब ऑप्शन में बीटा हाइड्रोक्सी है, छोड़ो फिर उसको, बट आपका रिवर्स सीक्वेंस में आपको एक ही यूनिक आंसर मिलेगा और वो है ए। आगे द कंपाउंड एस, नाउ एस क्या था आपका, साइनोहाइड्रीन का प्रोवाइड, साइनोहाइड्रीन ही है, मतलब दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एसिड की जगह यू नीड टू हैव अ साइनो ग्रुप। So let's see the options, so that we will be able to understand. 2 मिथाइल होना चाहिए, एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए, and then CHCnOH. D. Which one? The last one. The last one. Yeah. ठीक है, वैसे हमने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, आपको खाली मैच करना था, समझा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मेंस लेवल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको ब्रेक डाउन करके एक अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन एडवांस लेवल पे आते हैं, बट इफ यू जस्ट go through this example, lot of things are covered, right? Yes, sir. So you should develop a thought process that is only important in organic. चलो आगे बढ़ते हैं. Which gives Cannizaro's reaction? So Cannizaro's reaction is given by the compounds not giving Compound alcohol. without alpha. Alpha H. तो बस But sequence in बोलते this जाओ. we have a doubt. Doubt. I know what's the doubt. I'll come to Yeah. that. Okay. So Cannizaro's is given by formaldehyde, benzaldehyde, tert Third valeraldehyde, aldehyde. ditert butyl ketone, Diphenyl ketone. and diphenyl ketone. Now as per the options, दो ऑप्शन आपको दिखेंगे जो कैनिजारोस दे सकते हैं, एक तो बेंजोफिनोन दिया है और एक tert valeraldehyde दिया है, that is option A and D. This obviously won't give because of alpha H, and this is acetophenone, ये भी नहीं देगा because of presence of alpha H, right? अब थोड़ा सोचेंगे तो कैनिजारोस रिएक्शन वाज अ सेल्फ रिडॉक्स, मतलब it undergoes oxidation and reduction simultaneously. Yes. अब मुझे बताओ अल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में ऑक्सीडेशन इज इजियर फॉर Aldehyde. aldehydes, it readily oxidizes to acid, but ketones we would require some Vigorous oxidation. vigorous oxidation condition. Yeah. बराबर, और उसमें भी अगर दो बल्की ग्रुप्स होंगे लाइक फिनाइल्स या two tert butyl groups, then the oxidation for such type of ketones will be very difficult under normal conditions. मतलब इसका कैनिजारोस हो सकता है, but the conditions required would be very very vigorous, and because of the bulkiness there would be smaller yield of the product. ठीक है, तो अब अगर आपको बेंजोफिनोन वर्सेस tert valeraldehyde के ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, ये वन ऑप्शन करेक्ट है, तो Tert valeraldehyde. tert valeraldehyde ही होगा. ठीक है, ये मैंने इसलिए ऐसा दिया है बिकॉज ये सारे कंपाउंड्स जो है दे डोंट गिव अल्डोल. Yeah. That's the reason I made you to remember कि these will give Cannizaro's. Cannizaro's. But then there are certain restrictions on especially this two ketone वाला compounds because of the steric factors and the vigorous oxidation for the ketonic group. इसलिए मैंने एग्जाम्पल जो दिया है बुक में वो फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और tert valeraldehyde का ही दिया है, plus one exception of isobutyraldehyde. That's the only 4 reactions which are very important for Cannizaro's.
Got it? Yes or no? Yes, sir. Good. Next, in the reaction sequence, now just observe क्या दिया है. There is a compound A with Mg diether gives B. So which reaction would be this? Grignard. Correct. This is the Yeah. preparation of Grignard. मतलब Grignard. A has Yeah. to be a B alkyl हाँ alkyl halide. Alkyl Halide. halide. तो Yeah. halide कौन सा है मुझे नहीं पता, छोड़ो. Rx plus Mg gives you RMgx, RMGX. Grignard. and RMgx with formaldehyde gives Grignard plus formaldehyde gives case 1. It will give you Primary alcohol. Primary alcohol. alcohol. Yeah. तो आपको आगे H3O plus दिया है, मतलब C एक Mg कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है जिसका हाइड्रोलिसिस एक प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है. दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब if I have a Grignard as RMgX and it is reacted with formaldehyde, what is the primary alcohol you write? RCH2OH. Very good. So if the RCH2OH is given, can you spot R of the Grignard? Yes, sir. This part, which is isopropyl, is the R of Grignard, and that has to be Yes. the R of The alkyl halide. मतलब the compound A is equivalent to isopropyl का halide. So, sir, here the C is actually just Mg complex. Yeah, I because got confused hydrolysis is there. given in the next step. नहीं तो normally क्या करते हैं? They would give like this: formaldehyde. First step में MEMGBr and second step में H3O plus. ऐसे देते हैं ना? Yeah. और बाद में आपको डायरेक्टली यहाँ पर MECH2OH ऐसा प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है? Yeah. So there are two steps of the Grignard which gives you an alcohol. So ये आपका intermediate था which was not important as such. Yeah, I got confused there. That's हाँ, why. हाँ. Yeah. Yes. Someone was asking? Nothing? So I think I am missed out on the options, but A will be isopropyl chloride. You can look at the question number 157 for that. कौन सा answer? Option C. Okay. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Next, a compound on treatment with 50% aqueous NaOH gives 2-furoic acid and furyl alcohol. What is the structure of the parent compound? Now, which reaction with 50% of NaOH gives you acid and alcohol? Which reaction with an alkali 50% gives acid and alcohol? Canizaro. इतना समझ में आ गया? अब फ्यूरोइक एसिड क्या होता है, फरफ्यूराइल अल्कोहल क्या होता है, भाड़ में गया. ना भी पता हो तो कैनिजारोस रिएक्शन अगर समझा, मतलब यहाँ पे वो रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? What should be the reactant over here? हाँ? Hello? What should be the Aldehyde, reactant? sir. Huh? Aldehyde. Aldehyde. Yeah. Out of the 4 options, can you spot the aldehyde? First. First sir. one. बस ना, क्या फर्क पड़ता है फ्यूरोइक एसिड ना पता हो, फरफ्यूराइल अल्कोहल ना पता हो, तुम लोग को नाम देख के ही तुम छोड़ देते हो. That is the common mentality, and that is wrong attitude towards the approach of the questions. Mind it. Though the information about the acid and alcohol is not known, still you should be able to answer this question. क्योंकि 50% alkali is the hint for the Canizaro's का reagent. Acid and alcohol further confirms कि ये Canizaro है, और अगर Canizaro है मतलब फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होना चाहिए. अब एकदम सिंपल है, आपको 4 फंक्शनल ग्रुप दिया है, अल्डिहाइड, अल्कोहल, देन यहाँ तो सिंपली आपका इथाइल ग्रुप था रादर, और एसिड है. ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड है. अब चलो नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं फ्यूरल्डिहाइड.
क्यों बोलते हैं फ्यूरल्डिहाइड? थोड़ा रिलेशन देखो, व्हाट इज दिस रिंग कॉल्ड? Furan. Furan. ठीक है, याद आया कुछ? Yeah. तो Yes, sir. फ्यूरान के कार्बन पे जब CHO लगा देते हो उसको फ्यूरान का अल्डिहाइड बोलते हैं, दैट इज Aldehyde. फ्यूरल्डिहाइड। अब इसका जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे COH आएगा, इसको बोलते हैं 2-फ्यूरोइक एसिड, और इसी पे रिडक्शन करते हैं तो इसको बोलते हैं परफ्यूराइल अल्कोहल। खत्म। क्लियर? Yes, Tell sir. me, was the reference to the nomenclature required to solve this question? No. तो प्लीज रिमेम्बर, ऐसे कोई क्वेश्चंस छोड़ो मत जो आपने पहले कहीं नाम या उसका कॉन्सेप्ट ना देखा हो, उसके बिना भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई एम श्योर दैट तुम लोग ने नाम देख के ही छोड़ दिया होगा, क्वेश्चन आगे सोचा नहीं होगा, राइट यशवी? Yeah, sir. तो बस अभी वापस आपको बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको रिलेशन ना पता हो, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, मान लो ऑप्शंस में 2 अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा करेक्ट वन है, उसमें डाउट हो सकता है। ठीक है, उस केस में एक तुक्का मारना है तो मार सकते हो, उसमें भी आप 2 ऑप्शंस के बीच में तुक्का मार रहे हो, मतलब 50% चांस ऑफ गेटिंग द आंसर करेक्ट इज देयर। सो ऑलवेज थिंक ऑफ द प्रोबेबिलिटी। 4 में से ऐसा लगता है कि 3 ऑप्शन सही लग रहे हैं तो छोड़ देने का, 2 ऑप्शन में डाउट है अटेम्प्ट करने का, क्योंकि ऐसे 5 क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो 50% प्रोबेबिलिटी है करेक्ट जाने का। मतलब 5 में से मान लो 2 करेक्ट गए और 3 इनकरेक्ट गए, स्टिल यू आर एट +5। Isn't that better as compared to getting a 0 Yes, and sir. leaving the 5 questions? समझा? और अभी आपके न्यू पैटर्न में तो और भी सिंपल कर दिया है, 25 में से सिर्फ 20 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग है, 5 क्वेश्चंस डज नॉट हैव अ नेगेटिव मार्किंग, तो ये 5 तो आपको अटेम्प्ट करनी ही है। 20 में से मान लो यू आर एबल टू अटेम्प्ट इवन 14 क्वेश्चंस करेक्ट, एंड 6 क्वेश्चंस में से मान लो आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए जो बहुत डिफिकल्ट थे, 2 से 3 ले लो, एंड 3 क्वेश्चंस में 50% प्रोबेबिलिटी है। लेट्स गो टू पॉजिटिव एस्पेक्ट, 2 करेक्ट 1 इनकरेक्ट, तो 14 के एक्यूरेसी से यू गेट 56, एंड 2 और 1 के हिसाब से यू गेट 8 - 1 विच इज 7, एंड 3 छोड़ दिए मतलब नथिंग। तो ये हो गया 63 आउट ऑफ द 80 मार्क्स ऑफ 20 क्वेश्चंस, और इस 5 में से भी 50% प्रोबेबिलिटी ले लो तो आपको 2 क्वेश्चन करेक्ट है इन और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 8 और ऐड कर दो, तो 63 + 8 हाउ मच? 71. And 71 is a good score, not a good score, a very very good score। ये तो बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है केमिस्ट्री तो आप और भी अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ वर्कआउट करोगे, तो गेटिंग 75 to 80 is not a big deal, literally। So, but थोड़ा when we मेहनत करना see पड़ेगा। हाँ, like बोलो। any question, so when we see any question, that the first thing that I personally like I get in my mind is that even though I know the method and all, but sometimes I get that fear कि अभी minus marks मिलेगा, so if I don't know, like in the first sight, if I can't understand the question, then I leave it only. बट सी, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया, ठीक है, अभी मैंने आपको अप्रोच बता दिया कि ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ने जैसा था ही नहीं, दिस वाज एक्चुअली अ बोनस क्वेश्चन, राइट? Yeah. प्रीवियस देखोगे तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो ठीक है, सी दिस थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट विथ मोर प्रैक्टिस ओनली, और कोई तरीका नहीं है इसका। Yes, sir. ये सारी चीजें आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इनिशियल स्टेज में दीज ऑल थिंग्स विल लुक टफ और डिफिकल्ट, दैट्स ओके, Yes, sir. बट थॉट प्रोसेस आपको बढ़ाना पड़ेगा। सी, ऑर्गेनिक इज नॉट समथिंग कि ए दिया है, बी दिया है और सी फाइंड करना है। इट कैन बी एनीथिंग कि ए इज अननोन, बी इज अननोन एंड सी के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, बैक ट्रेस करके ए और बी फाइंड करना है, या सिंपली बी Yes, sir. दिया है और ए और सी दोनों फाइंड करना है, ऐसे भी हो सकता है।
सो अगर जब तक आपको पूरा रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ना पता हो, आप कोई भी अननोन को ट्रेस नहीं कर सकते हो. You should know each and every part, each and every aspect of the reaction. समझा? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थियोरी को पूरा परफेक्ट बनाओ. Yes, sir. ऑर्गेनिक का फर्स्ट स्टेप है knowing all the reactions. The moment I ask you any reaction, you should be quick to answer it. आपका टाइम लग रहा है, वो आपका वीक पॉइंट है. समझा? एडिशनल Yes, sir. रिएक्शन तो सेकेंडरी है. प्राइमरीली जो आपके थियोरी में रिएक्शंस हैं, वो सारे रिएक्शंस को पहले अच्छे से करना है. दैट फॉर्म्स योर 80% ऑफ द सिलेबस. 20% में से 10% इज योर एड ऑन रिएक्शंस जो मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, और बाकी 10% जो है दैट इज द अप्रोच व्हाट यू विल फॉलो टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, sodium salt of an organic acid X produces effervescence with concentrated H2SO4. So thinking about concentrated H2SO4 means Rating Dehydrate. agent. dehydration, Yeah. and effervescence निकल रहा है, मतलब it should be a gas. CO2. And options में देखोगे तो वो कंफर्म हो जाता है कि they are talking about carbon dioxide gas only. Yes, sir. Yeah. ठीक है? उसके बाद बोला है X reacts with acidified calcium chloride, acidified CaCl2 to give a white precipitate which in turn decolorizes KMNO4 acidic. मतलब there is some test related to the white PPT. Decolorizes acidic KMNO4. मतलब जो पर्पल कलर है that will turn to colorless. Okay. So they are asking about compound X. Now, if you see the options, it is sodium acetate. Sodium, what is this? C2O4. Oxalate. ऑक्सैलिक एसिड हमेशा याद रखो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2C2O4 एंड उसका जो अन आयन है दैट इज C2O4 एंड उसका सॉल्ट जो होगा दैट विल बी Na2C2O4, मीनिंग दिस इज ऑक्सैलेट सॉल्ट. ये तो नोन है सोडियम बेंजोएट और ये है सोडियम फॉर्मेट. नाउ थिंक व्हिच कंपाउंड ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स द CO2 गैस. इनमें से कौन सा कंपाउंड डिहाइड्रेट करके CO2 गैस देता है? एक ही कंपाउंड है, इसलिए सिंपल है. Haven't you learnt about this reaction that oxalic acid on heating with concentrated H2SO4 P block elements group number 14 gives you CO plus CO2 and H2O. बोला नहीं पता है. Yes or no? Yes. Hello. Yeah, sir. Yes, sir. तो ऑक्सैलिक एसिड या उसका सॉल्ट को हीट करते हैं विद concentrated H2SO4, it gives the mixture of two gases which is carbon monoxide and carbon dioxide. बाकी सॉल्ट्स का डिहाइड्रेशन doesn't release the carbon dioxide gas, मतलब it was a dicarboxylic acid salt and एक ही ऑप्शन वो रिलेशन दे रहा है. प्लस आगे उसी एसिडिफाइड CaCl2 के थ्रू जो व्हाइट पीपीटी बन रहा है उसमें द डीकलराइजेशन इज थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस ओनली. मतलब the CO2 would react with, you have this reaction if you remember, KMNO4 plus H plus the oxalate salt. This undergoes reduction to form manganese and this will oxidize to CO2 and H2O, right? याद आया कुछ? D block elements. आया था. तो
ये व्हाइट पीपीटी से डीकलराइजेशन फर्दर कंफर्म कर रहा है कि जो अनआयन है दैट इज C2O4 2-, बिकॉज बाकी कोई सॉल्ट्स KMnO4 के साथ रिएक्शन देंगे ही नहीं। तो एफरवेसेंस दे रहा है, दैट वाज फर्स्ट हिंट। डीकलराइजेशन हो रहा है, दैट वाज द सेकंड हिंट। बोथ hints confirm the presence of the oxalate anion and that's why the answer is option B. Got it? Yes, So no. Yes, sir. चलो नेक्स्ट वी हैव करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। नाउ एसिडिटी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक इन 200 to 300 के रेंज में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको बता देता हूं, देन विल मूव ऑन टू दिस क्वेश्चंस। एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिलेशन में। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मिक एसिड versus acetic acid versus propionic acid, tell me which is the stronger acid? Formic. Why? formic acid. Plus I effect. Perfect. So Yeah. from formic to methyl to ethyl the plus I is going on increasing and plus I मतलब EDG क्या करता है? Decreases acidic Decreases strength. acid strength. Decreases the acidic strength and that's why formic was more acidic Greatest. than acidic and then acetic acid and then propionic acid. बराबर? अब यहाँ पे let's talk about the aromatic acids, that is benzoic acid and their substituted compounds. Let's say मेरे पास benzoic acid है, फिर benzoic acid with nitro है and benzoic acid with methyl है. Which will be strongest? Nitro. Nitrobenzoic acid, Yeah. then Then First one. first and then the adabenzoic third. acid, and then And the toluic methyl. acid. Yeah. करेक्ट? Yes. तो वही फंडा है EDG और EWG का। अब अगर मेरे पास नाइट्रो के ऑर्थो मेटा पैरा तीनों कंपाउंड्स हैं, तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर नाइट्रो है ऑर्थो पे, नाइट्रो है मेटा पे और नाइट्रो है पैरा पे। अब ये आइसोमेरिक बेंजोइक एसिड्स, नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स में हाउ विल यू कंपेयर? व्हाट इज द अप्रोच? The hydrogen bonding formation कहाँ पे? between the ortho. Yeah. ऑर्थो नाइट्रो में H बॉन्डिंग होगा, यस। हाँ. Which will be stronger, so this will be more acidic. वेरी गुड। Then yeah, meta pe the bond will become weaker, so it will be lesser than the ortho. बॉन्ड विल बिकम वीकर, कौन सा? H बॉन्डिंग? Yeah, I H must. बॉन्डिंग तो होगा ही नहीं, Okay. तो So वीकर होने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे यू हैव टू रिलेट द इफेक्ट्स ऑल्सो। मैंने बताया था कि ऑर्थो एंड पैरा पे ही रेजोनेंस होता है, Yeah. मेटा पे Yeah. रेजोनेंस लिखना गुनाह है। हाँ. And what type So of resonance does nitro exhibit? Plus R or minus R? Minus R. Minus R. So you will write minus R, minus R. Then between carbon and nitrogen, this particular bond is having the difference in electronegativity. Yeah. And which is more electronegative? Nitrogen. 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 So nitro as a group will exhibit what type of inductive? खींचने वाला कि देने वाला? Minus. खींचने Minus वाला. I. तो मेटा पे भी माइनस आई होगा, Yeah. माइनस तो आई तो तीनों पे होता है। तो दिस इज हाउ यू राइट द इफेक्ट्स, राइट? Yes, sir. समझ में आया? Yeah. अब कंपेयर करने के लिए फर्स्ट यू विल सी रेजोनेंस या इंडक्टिव? Resonance. रेजोनेंस। Resonance. अब रेजोनेंस में भी आप सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे देख रहे हो रेजोनेंस, एंड व्हाट डज माइनस आर और EWG डू टू द एसिडिक स्ट्रेंथ? Stabilizes. Increases. Stabilizes the carbon ion or rather the Increases the conjugate acidic base and strength. increases the acidic strength. Yeah. But resonance is distance dependent or independent? Dependent. Hmm? Dependent. Independent. Resonance ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो क्या फर्क पड़ता है? ये तो पूरा घूमते जाता है ना रिंग में। Yeah. Okay.
तो हम बोलते हैं रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, बट Independent. इंडक्टिव डिपेंड्स ऑन Yeah, it depends on distance. डिस्टेंस. जितना पास उतना अच्छा, राइट? Yes. तो R से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट माइनस आई के थ्रू हम कंपेयर करेंगे. और माइनस आई क्या करता है? एसिड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. और पास में है तो ऑर्थो विल बी मोर एसिडिक देन द पैरा, सो इट विल बी ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा. उसके बाद लास्ट में आएगा मेटा. ये हो So गया. why doesn't meta have resonance? When you see the plus R and minus R का resonating structures, with plus R we were getting a positive charge on ortho, para, ortho, Yes, sir. and with minus R also we were getting a charge on ortho, para and ortho only, not at meta. Yes, sir. मतलब the resonance is effective at Ortho and para. ortho and para. तो रेजोनेंस के लिए दो चीज हमेशा याद रखनी है. रेजोनेंस इज इफेक्टिव ओनली एट ऑर्थो पैरा, एंड रेजोनेंस इज डिस्टेंस Distance independent. इंडिपेंडेंट. उसके थ्रू ये आइसोमेरिक वाले एसिड्स को आप कंपेयर कर सकते हो. Yes, sir. अब But यहाँ sir, पे हाँ, if you say ortho, para, and then meta, then the options like in 200 to 300, there are many options where they've said the order is there is ortho, some meta, concept para. behind it. वेट, ये तो मैंने सिंपल वे में बता दिया माइनस आई का. अब अगर प्लस आर वाला होता तो सीक्वेंस में उल्टा पुल्टा हो जाता. ठीक है. तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान देना. If you have benzoic acid which is substituted with any substituent. Wait a second, I'm getting some urgent call. Just a minute. Hello. Yes. वीडियो कॉल से बात कर रहा हूँ. हाँ बोलिए. कंप्लेन था आपका कौन सा कंप्लेंट? डिश टीवी का. कंप्लेंट नहीं था, न्यू कनेक्शन. मेरा बात हो गया है. अच्छा बात हुआ. हाँ, आ रहा है हाँ. कोई घर पे? नहीं, मैं मंडे को बुला रहा हूँ. अच्छा मंडे को बुला रहे हैं. हाँ. नया कनेक्शन करना है आपका? हाँ. ओके. हेलो. हेलो. Yes, sir. Yeah, sorry. So if I have a benzoic acid and let's say there is a substituent S, और ये substituent EDG या EWG कोई भी हो सकता है. So I can say this is ortho substituted benzoic acid where the substituent can be anything EDG or EWG. ठीक है. अब लाइन वाइज मैं आपको स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ. जस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन ऑफ बेंजीन? sp2. sp2. And what is the hybridization of carbon of COH? SP. अरे बेसिक क्वेश्चंस में तुम लोग इतना सोचते हो यार, हद है. sp2. Obviously. So now if both carbons are sp2, can I say they are in the same plane? मतलब Yes. visualize the benzene as a flat molecule. Along with that, the COH is also in the same plane. मतलब overall, this particular molecule is a planar flat molecule. So now, if there is introduction of a substituent at the adjacent position, meaning very close to the COH, this substituent, because of the closeness, will have steric factors. ये Yes, जो sir. सब्स्टिट्यूएंट है ऑर्थो पोजीशन पे इतना क्लोज होने की वजह से रिपल्शन करेगा इस ग्रुप के साथ. और अब क्या होता है? द plane of this COH gets rotated. The plane of this COH gets rotated and now no longer the COO group is in the same plane. मतलब substituent S ने at the ortho position made the COH group rotate out of the plane, meaning in simple words the planarity is lost. The planarity is lost. अब जैसे ये प्लेनारिटी लॉस होगा, इस H+ का निकलना
इजी हो जाएगा, बिकॉज जब तक ये सेम प्लेन में था देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ द H plus overall for the benzoic acid. ठीक है, लेकिन the substituent at the ortho position made the COH to rotate out of the plane and which in turn made the H plus का release easier. H plus का release easier. So this particular effect is first of all called ortho effect. क्या बोलते हैं? Ortho effect. And this is also named as SIR effect, where SIR refers to steric inhibition of resonance. वर्ड समझ लो, स्टेरिक मतलब समझ में आया, ये स्टेरिक फैक्टर है. इस स्टेरिक फैक्टर ने क्या किया, COH को प्लेन से हटा दिया, रोटेट कर दिया, नॉन प्लेनार बना दिया. अब जब तक ये सेम प्लेन में था, बिकॉज ऑफ द प्लेनारिटी द रेजोनेंस वाज देयर, बट अब प्लेन से हटाने के बाद द बिकॉज ऑफ द स्टेरिक फैक्टर द रेजोनेंस इज इनहिबिटेड. Yes, sir. बस ये सर में ही पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है. Steric factor inhibited the resonance. That is called SIR effect. So what is the conclusion for this effect? The conclusion is any ortho substituted acid, O substituted carboxylic acid, which is only benzoic acid, is stronger than its मेटा या पैरा आइसोमर्स. एनी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, चाहे EDG वाला हो या EWG वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये सर इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट क्या कर रहा है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है. मतलब अगर आपका बेंजोइक एसिड सब्स्टिट्यूटेड है एंड एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो पहले नंबर पे कौन होगा? ऑर्थो. बाकी पैरा और मेटा में डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप ऑफ ये -I एंड -R -I, जैसे मैंने अभी बताया, कंपैरिजन हो जाएगा. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, यू हैव फर्स्ट वन एज डाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड. ये ग्रुप कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो ग्रुप होने की वजह से the SIR effect will be stronger. Yes. और अगर SIR stronger होगा, SIR effect stronger होगा, तो the strength will also be higher. More. And a single ortho substituted acid, yes or no? Yes. अब आपके पास बचा आपका मेटा और पैरा. बट कंफर्म हो गया 1 and 2 is 1 is greater than 2. compared as 1 greater than 2. तो एक ही ऑप्शन है, आगे दिमाग ना भी लगाओ तो भी आंसर आ गया. फिर भी अगर दिमाग लगाना चाहते हो तो मेटा पे शुड आई राइट एनी R इफेक्ट? No. ओ शिट, गुनाह कर दिया ना, मेटा पे तो R लिखते ही नहीं है. ऐसे ही याद रखने का, मेटा पे R लिखना गुनाह है, तो याद रहेगा. मेटा डजंट हैव रेजोनेंस इफेक्ट. तो बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन व्हाट विल दिस OH एग्जिबिट, +I और -I? -I. ठीक है. एंड OH ग्रुप एट द पैरा हैज रेजोनेंस. कौन सा टाइप, प्लस या माइनस? Plus. आपत. Yes. ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, +R और -I तो वैसे भी है ही. तो अब रेजोनेंस अगर मैं कंपेयर करूं तो प्लस वाला रेजोनेंस मतलब EDG, और EDG एसिड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, तो ये सबसे लास्ट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. द आंसर इज 1 2 3 4. समझा? Yes, sir. ऑर्थो इफेक्ट क्या है, ज्यादा दिमाग ना लगाओ तो भी चलेगा. ऑर्थो इफेक्ट में ऑर्थो वाला एसिड सबसे पहले आता है. क्यों आता है? अगर सर को याद रखोगे तो स्टेरिक फैक्टर्स इनहिबिट्स द Resonance. due to which the H plus का release becomes easier, which in turn is related to the rotation of the COH out of the plane. खत्म. Clear? Yes, sir.
Sir effect. Okay, next. This should be simple. Benzoic acid with ammonia. Two reactions, quick. Acid amide. पहले benzoic acid with ammonia will give Salt. ammonium salt, Yeah. हाँ. which on heating gives you amide. ठीक है. अब amide में NaOBr, मैंने आपको बोला था कि Br2 plus NaOH is equivalent to NaOBr. Say yes or no? Yes, sir. So haloform test. हाँ, पर ये हेलोफॉर्म टेस्ट के रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये अमाइड है. हेलोफॉर्म टेस्ट अमाइड हाँ. नहीं दिखाते हैं. तो इसकी इस रिएजेंट के रिलेटेड एक और रिएक्शन मैंने बताया था, जो मैंने बोला था नाइट्रोजन में आप पढ़ोगे, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. तो उसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इफ द रिएक्टेंट इज अमाइड with NaOBr it forms amine. ऐसे Yeah. बोलने का यशवी. Amino. हाँ. Yeah. ठीक है. तो दिस इज हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. ये आप नाइट्रोजन में शायद अभी तक पढ़ चुके रहोगे. नहीं, जाने दो, शायद चालू ही नहीं किया होगा. Amide gets converted to amine through NaOBr या Br2 NaOH. मतलब this particular compound Q would be C6H5NH2, which is aniline. Yeah. अब aniline with sulfuric acid heated to 460 Kelvin. This undergoes which reaction? शान का कौन सा रिएक्शन होगा? Nitration. हे भगवान. Nitration is nitric acid and sulfuric acid both. Yeah. Only sulfuric acid will be अरे शान में 5 ही तो है, 500 रिएक्शन है क्या? ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये हैलोजन, सल्फोनेशन, हैलाइड, ये नाइट्रेशन, Sulfonation. तो SO3H will go to the para position as the major product, और इस पर्टिकुलर सल्फोनिक एसिड सब्स्टिट्यूटेड विद NH2 को बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड. सल्फेनिलिक एसिड. ये ना भी स्ट्राइक हुआ तो डोंट वरी, बिकॉज ये नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एसिड को सीक्वेंस के साथ रिलेट किया है. तो ऑब्वियसली पी तक शायद सोच लिया होगा, बट क्यू एंड आर आपने नहीं सोचा. Yeah. दैट्स ओके. तो मैं बनाया था, फिर इरेज कर तक किया है. या पी तक हाँ. किया है, देन इरेज कर. तो दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन खत्म ना होगा तो ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे. डोंट वरी. बट अभी अगर देख लिया और आ भी गया टेस्ट में तो बोलना मत कि ये हमने नहीं किया है. नाउ इट्स डन, मतलब इट्स कंप्लीटेड. ओके. यस. सल्फेनिलिक एसिड. Okay, next. Now relative acidic strengths of benzoic acid, orthotoluic acid and paratoluic acid. So acidic strength of substituted benzoic acid, what to think? Ortho is the most. Option B or D valid? Yeah. Yes. अब toluic acid में para position पे अगर methyl है तो what will it do to the acidic strength? Decrease or increase? Decrease. Because methyl is a EDT. famously हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों होता है. इसमें हम रेजोनेंस ना लिखकर हाइपर कॉन्जुगेशन लिखते हैं. अगर आप प्लस आर भी लिखो तो भी चलेगा. आइदर वेज इट्स अ स्ट्रॉन्ग EDG और EDG डिक्रीज करेगा. Decreases as acidic strength. तो ऑर्थोटोलुइक एसिड सबसे पहले, उसके बाद बेंजोइक एसिड, Benzoic उसके बाद acid. पैराटोलुइक एसिड. Yeah. Answer is अंडरस्टूड? yes, sir. और इफेक्ट. Which of the following reagents may be used to distinguish between phenol and benzoic acid? Now सोचो, NaOH जो है, does it react with both? Yes, sir. Yes, तो ये तो differentiate नहीं कर पाएगा. टोलोन्स अपना अल्डिहाइड और कीटोन को कीटोन differentiate करता है, ये भी नहीं है. मॉलिश किसके लिए था?
कार्बोहाइड्रेट्स ना? हाँ अरे तुम लोग टेस्ट का नाम याद रखो, मॉलिश इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स के लिए टेस्ट होता है मॉलिश, बायोमोलिक्यूल्स में बताया है। मॉलिश है, फिर निनहाइड्रिन टेस्ट है, बाइयूरेट टेस्ट है, यू गॉट टू रिमेम्बर द नेम्स। और न्यूट्रल FeCl3, this will react with phenol to form purple coloration na, aqueous neutral FeCl3, the test for phenols, theory mates given at the end of the phenols. Hello, hello. Yes, sir. Phenols with aqueous neutral FeCl3 forms a purple Purple colored compound, coloration. फेरिक फिनॉक्साइड बनाता है, और वो फिनॉल के लिए एक टेस्ट है जो एसिड नहीं देता है, तो आंसर डी है इसका। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट, द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लीस्ट स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग इज। अब पहला ऑब्जर्वेशन, सारे ही पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैं, Oh, hello. तो ऑर्थो वाला तो है नहीं, तो ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा। अब खाली सब्स्टिट्यूएंट को आपको देखकर उसके इफेक्ट्स को सोचना है, और लीस्ट मतलब इट शुड हैव व्हाट टाइप ऑफ EDG. सब्स्टिट्यूएंट? EDG. EDG. नाइट्रो इज व्हाट टाइप? EWG. तो रूल्ड आउट। क्लोरो इज Yeah. Hmm. EWG. रूल्ड आउट। मिथॉक्सी, EDG. आपत एंड मिथाइल, Also EDG. EDG. EG। अब लीस्ट बोला है मतलब EDJ में भी जो स्ट्रॉन्गर EDG होगा वो एसिड की स्ट्रेंथ को ज्यादा कम करेगा, Yeah. जो हाँ स्ट्रॉन्गर EDG होगा वो एसिड के स्ट्रेंथ को ज्यादा कम करेगा। ज्यादा कम करे. But मिथॉक्सी how वर्सेस will we come मिथाइल, to know? अरे आपत का ऑर्डर दिया है ना, Okay. आपत is in the order only. Aniline has highest plus R followed by phenolic OH, Phenol. then anisole का methoxy, toluene का methyl, यही तो कंपैरिजन है अभी। Yeah. Oh. So methoxy is stronger than methyl. मिथॉक्सी Then स्ट्रॉन्गर EDG है, stronger. तो उसका Oh. एसिडिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट ज्यादा होगा कम करने में, मतलब लीस्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझा? मैंने क्या sir. बोला था, प्लस आर में याद रखो आपत, माइनस आर में नाइट्रो सबसे स्ट्रॉन्ग, इतना याद रख लो। तो अमंग पैरा नाइट्रो एंड पैरा क्लोरो अगर पूछा होता तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता? Nitro. फिर क्लोरो आता, फिर मिथाइल आता, फिर मिथॉक्सी आता, हो गया कंपैरिजन एसिडिक स्ट्रेंथ का। अगर कंपैरिजन पूछा है तो ए वुड बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर C. देन D. बी ग्रेटर देन D. डी, हो गया पूरा आंसर। Yeah. एक ही क्वेश्चन में ना थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ ताकि आपके आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आंसर आ गया मतलब आगे बढ़ने का वैसा नहीं अप्रोच रखने का। इसी में जस्ट और एक क्वेश्चन सोचो, तो चारों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा वो भी सोचने का। ठीक, नेक्स्ट, डालडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑयल्स बाय। डालडा इज व्हाट? इट्स घी। डालडा Hydrogen. घी है ना, मीनिंग इट्स अ फैट। Yes, sir. A fat is prepared from oil by। अब जब मैंने आपको लिपिड्स का पार्ट करवाया था बायोमोलिक्यूल्स में, तब बताया था दैट ऑयल्स आर unsaturated fatty acids Yes, sir. and fats are Saturated. saturated fatty acids। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। Yes, sir. तो क्वेश्चन ये है कि अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड कैसे होता है? हाइड्रोलिसिस, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Reduction. ऑब्वियसली हाइड्रोजनेशन इज रिडक्शन ना। Oil is converted into fat by H2 in presence of nickel, and that hydrogenation, addition of hydrogen, is called reduction na? The answer is D. Which of the following will produce only one product on reduction with LiAlH4?
Now, what is the functional group in the options given? What is this? No one can identify the functional group? Anhydride. Nahi. Ether. It's like CH3 OC double bond O CH2 CH3 कंडेंस फॉर्म में दिया तो कंफ्यूज हो Ester. जाएगा. It's an ester and it's given Ester. in the उल्टा फॉर्म. वो भी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट था. और मैंने बोला ईस्टर के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 बार सोच लो व्हाट इज आर डैश. All the options are given in the form of ROOCR dash. it's R dash OOCR. OCOR. ऐसा दिया है. ईस्टर में R and R dash is very 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 important. समझा क्या? अब मुझे बताओ Yes, ईस्टर sir. का रिडक्शन क्या देता है? LiLH4 के साथ ईस्टर ऑन रिडक्शन 5 स्टेटमेंट्स में से Acid. नहीं नहीं नहीं. Nine. Alcohol. Can you be specific in that? Primary alcohol. Primary alcohol from? Primary R dash. नहीं यार. See, there were 5 statements. Formaldehyde reduces to methanol. Aldehyde reduces to primary alcohol. Ketone reduces to secondary alcohol. Acid reduces to primary alcohol and water. Ester reduces to This is primary to alcohol from Primary R alcohol and and general general alcohol from R alcohol. dash. Yeah. देखो आप लोग वापस एक भूल कर रहे हो. You are not learning or understanding it specifically. मैंने आपको ऐसे ही लिखवाया है और ऐसे ही पढ़ाया है. क्यों मैं बार बार स्पेसिफिक 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 बोलता रहता हूँ? क्योंकि अगर स्पेसिफिक नहीं बोलोगे तो आपके मिस्टेक्स होने के फुल चांसेस है. सो इफ यू से इट एज प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम R, you will write RCH2OH and general alcohol from R dash, you will write R dash OH. समझा? और ये अल्कोहल के sir. चैप्टर में से है. मैंने बोला है ऑर्गेनिक में चैप्टर वाइज सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये एस्टर का रिएक्शन है तो एस्टर इज पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यही चैप्टर का पार्ट है. बट रिएक्शन हमने अल्कोहल में किया था क्योंकि इट वाज प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल्स. ठीक है, तो ऐसे केसेस में जाके थोड़ा रिवाइज कर लेने का एक एक पार्ट. तो नाउ कैन यू टेल मी द 2 प्रोडक्ट्स ऑफ दिस? ये R है आपका, दिस राइट हैंड साइड. So I'll write CH3 CH2 CH2OH. मतलब propanol plus CH3OH. OH. Are the products same? No. No. Second में CH3 CH2 CH2OH Yeah. and CH3 CH2OH. CH2OH. अभी orally भी कर सकते हो actually. Fourth one is the answer. हाँ, इस केस में आपका इथेनॉल और प्रोपेन CH3 CH2OH. फोर्थ कैसे होगा? फोर्थ में क्या आ रहा है? CH3 CH2 CH2 CH2OH आएगा ना. Yeah. प्लस R डैश तो सीधा OH को कनेक्ट हो जाता है. आर दे सेम? No. No. में 2 प्रोडक्ट सेम आ रहा है, ऑप्शन सी है. C. डिफिकल्ट नहीं था. पहले तो R डैश को बराबर आइडेंटिफाई करो, जनरल रिएक्शन सोचो, कॉपी पेस्ट करो, प्रोडक्ट्स लिखो एंड जस्ट ऑब्जर्व कहां पर प्रोडक्ट सेम है. आंसर इज सिंपल. But sir, in the answer they've given the answer as A. Can't be. Wrong है. Okay. चेंज sir. कर लो. Yeah. करेक्ट आंसर विल बी सी. ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैंने सारे प्रोडक्ट्स भी लिख दिए हैं. ए हो ही नहीं सकता बिकॉज उसमें प्रोपेनॉल और मिथेनॉल बन रहा है. नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट expected from the following reaction is
Now, how many functional groups can you observe? मैं एक एक functional group लिख रहा हूं, आप बताते जाओ. CH2OH. Primary alcohol. Very good. CO2H मतलब COOH. Acid. Acid. C double bond O NH2. Amide. Acid amide. Amide. And OH. Alcohol. Should be phenolic OH. Alcohol गलत है ना? Yeah. This is an alcohol. This is a phenolic OH. Phenolic OH. क्योंकि अल्कोहल फिनॉल के रिएक्शन अलग हो जाते हैं ना, तो अभी वापस स्पेसिफिक बोलोगे तो इट शुड बी अ फिनोलिक OH. ठीक है. अब द रिएजेंट गिवन इज HCl gaseous in presence of CCl4. So there is an acid which is reacted with this compound. Now there can be many reactions which you can think about for this particular compound, but options में अगर देखते जाओगे तो first में acid और alcohol unaffected है, the OH is substituted by Cl and even the amide is unaffected. Now just think, can the phenolic OH react with HCl to form chlorobenzene? No, sir. Steric possible. hindrance आ जाएगा. Steric factors भी है, और phenol से chlorobenzene Dow's process में we had used NaOH वाला reagent. 6 to 8% NaOH. हाँ, at a very high temperature of about 613 Kelvin. Yes, sir. ठीक है. और वैसे भी फिनॉल से डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन कोई है ही नहीं, और HCl के थ्रू दैट्स नॉट पॉसिबल because the carbon to oxygen bond with the sp2 carbon of the benzene is very difficult to be broken down. ठीक है. नेक्स्ट में आप देखो तो there is an ester formation, और ये एस्टर कहाँ से बना है? अल्कोहल और अमाइड. इज देयर एनी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अमाइड टू फॉर्म एन एस्टर? नो. अगेन थर्ड में वही किया है, बट सेकेंड और थर्ड में फर्क क्या है? सेकेंड में इसको भी अफेक्ट किया है और थर्ड में इसको अफेक्ट नहीं किया है, बट ये तो दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. अब बचा फोर्थ ऑप्शन. आंसर वही होना चाहिए, क्योंकि now we do have a reaction between an alcohol and the acid in the presence of H plus, which is famously called as esterification. But since it is happening within the molecule, this is simply intramolecular esterification, जो हम एक पैसेज में भी देख चुके हैं. तो अब यहाँ देखो COO connect हो जाएगा. You can see this C double bond O and this CH2 coming from the primary alcoholic group, and rest of the functional group remains unaffected. Just have a look at this. Yeah. Yes. मतलब it is just observation based. आपको कुछ भी नहीं करना था यहाँ पर. देखो मैंने अप्रोच क्या बताया आपको. फर्स्ट में conversion of phenolic OH into chlorobenzene not possible. Option A gone. Amide and alcohol not giving an ester. That's why 2 and 3 both are ruled out. बचा एक आंसर. Within fraction of seconds you could have answered. समझा? Yes, sir. That was the last question.